नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट शिप्रा इब्राहिम डिजिटल इंडिया आस्क आवर एक्सपर्ट्स के 48 एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी नॉर्थ ईस्ट की जान है। इस पर इसका तेजी से बढ़ता पानी हर साल यहाँ तबाही और इरोजन मतलब नदी तट अपरदन लेकर आता है। So to protect our communities and build climate resilient valleys, we require world class engineering, strategic planning, and integrated water resource management. This is where the Brahmaputra Board plays an important role. The Brahmaputra Board is the statutory body under the Ministry of Jal Shakti, Government of India, tasked with leading flood control and erosion management across the Northeast. To help us understand the massive efforts happening behind the scenes, we have a very special guest today with us. Joining us is the chairman of the Brahmaputra Board, Dr. Ranbir Singh ji. Sir, I welcome you to the show. Thank you very much. और दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके सवाल ही हमारे शो की शोभा बढ़ाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और अपने सवाल पूछते रहिए। Sir, to begin with, for my audience, I would like to understand the situation in the Northeast. Why do floods occur so frequently and severely in this region? अ, उसके कई कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी बारिश होती है जी सर। और मानसून के दौरान अ, काफ़ी पहले बारिश शुरू हो जाती है और कई महीनों तक बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है। तो वाटर रेन वाटर इज़ वन मेजर फैक्टर, द क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर। ऑल्सो it is a very big basin. Brahmaputra basin includes Tibet and the entire northeast, almost the entire northeast. So it gets a lot of water. Right? The other thing is that most of this rain is falling into the mountains, and from the mountains there is rapid flow of water. In a very short period of time, the water comes down and gets into the plains. और जिसको हम ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं वो प्लेन्स में बहती है, असम के प्लेन्स में बहती है। तो फटाफट स्लोप से पानी फ्लो होके और प्लेन्स में आता है और उससे फ्लडिंग होती है। So there are also factors like climate change. Right. Now because of climate change, lot of water sometimes falls in the form of rain in a very short period of time. That also aggravates the problem. Right. Another issue in the northeast is that because this water is coming from the mountains, uh, it erodes. Okay. No, and gets lot of sediment Right. along with it. This sediment it carries rapidly into the plains, and when the velocity of the water slows down in the plains, Hmm. तो फिर वो सेडिमेंट को छोड़ देता है, सेडिमेंट वहाँ जमा हो जाता है। सेडिमेंट ऊपर पहाड़ों से बहुत ज़्यादा सेडिमेंट आते रहता है जी। ओवर द ईयर्स और प्लेन्स में जमा होता है। जी। तो उससे जो रिवर की कैरिंग कैपेसिटी है ओ वो कम हो जाती कम। राइट। है, शैलो हो जाती है। तो उसकी वजह से भी फिर फ्लडिंग ज़्यादा होती है। सो देयर आर मेनी रीजंस। राइट। थैंक यू सर। तो सर फिर दिस टेक्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें ब्रह्मपुत्र बोर्ड का क्या रोल है? So Brahmaputra Board, as you said, is a central government organization. So like we have written here uh, Brahmaputra Board Assam. So of course Brahmaputra Board head office is located in Assam in Guwahati. Right. But the Brahmaputra Board is not for Assam. Brahmaputra Board is for the entire Northeast. We have 8 northeastern states जिनको अष्टलक्ष्मी भी कहते जी। हैं and northern part of West Bengal. So ये 9 बेसिन स्टेट्स हैं
जो कि ब्रह्मपुत्रा बोर्ड की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। और इसमें ब्रह्मपुत्रा एक रिवर सिस्टम है। उसके अलावा एक और मेजर जो रिवर सिस्टम है वो बराक। ओके। उसके अलावा कुछ माइनर रिवर सिस्टम्स भी हैं। तो ब्रह्मपुत्रा बोर्ड की जिम्मेदारी जितने भी रिवर सिस्टम्स हैं नॉर्थ ईस्ट में उन सब के लिए है। राइट। तो हमारा जो मेन मैंडेट है इट कम्स फ्रॉम ब्रह्मपुत्रा बोर्ड एक्ट ओके। ऑफ 1980। 1980 में संसद ने एक कानून पास किया था जिसको हम ब्रह्मपुत्रा बोर्ड एक्ट कहते हैं। उसमें इस संस्था को क्रिएट किया गया। 1982 में ये काम करना शुरू किया ब्रह्मपुत्रा बोर्ड ने। और इसका जो मैंडेट एक्ट ने बताया वो सबसे पहली बात कि नॉर्थ ईस्ट की नदियों की मास्टर प्लान बनाना है। सो ब्रह्मपुत्रा बोर्ड का एक मेजर काम है जितनी भी नदियां हैं उनकी मास्टर प्लान बनाना। तो हमने 70 ऐसी बड़ी नदियां आइडेंटिफाई कर रखी थी जिनकी मास्टर प्लान ब्रह्मपुत्रा बोर्ड बनाएगा। और अब उसमें पिछले 2 साल में हमने 6 नदियां और जोड़ी हैं। तो अभी 76 रिवर्स आइडेंटिफाइड हैं जिनकी मास्टर प्लान ब्रह्मपुत्रा बोर्ड को बनानी है। 52 रिवर्स के मास्टर प्लान हम ऑलरेडी बना चुके हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव करवा के और स्टेट गवर्नमेंट्स को हम दे चुके हैं। ओके। उसके अलावा अब 18 तकरीबन 18 नदियों की मास्टर प्लान बनाने का काम अभी चल रहा है जो कि इस साल के अंत तक हम लोग वो मास्टर प्लान फाइनलाइज कर लेंगे। जी। उसके अलावा कुछ का और कुछ फिर अगले 1-2 सालों में बनेंगी और ये सिलसिला है जो चलता रहेगा। तो अब हमारे पास 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो जिन नदियों के मास्टर प्लान अभी तक नहीं बने उनके मास्टर प्लान बनाना। दूसरा जो उनके मास्टर प्लान पहले बन चुके हैं जैसे मैंने कहा 52 जी। रिवर्स हैं उनकी मास्टर प्लान्स को अपडेट करना। राइट। क्योंकि अब जब हम मास्टर प्लान बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। ये हमारी कोशिश है। हम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसमें। और अब हम जितनी भी मास्टर प्लान बनाएंगे वो जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान होंगी ओके। और वो जीआईएस पोर्टल पे होंगी। सो हमने ये डिसाइड किया है कि हम फ्यूचर में हर मास्टर प्लान के लिए एक 10 ईयर साइकिल फॉलो करेंगे। यानी कि 10 साल के बाद मास्टर प्लान को अपडेट किया जाएगा। तो सर आप हमें मास्टर प्लान के बारे में बता रहे थे। ये मास्टर प्लान क्या होता है सर? मास्टर प्लान को हम रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान भी बोल सकते हैं। जी। और एक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही पूरी दुनिया में बहुत ही पॉपुलर है उसको हम इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट बोलते हैं। इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट इट इज़ एन अप्रोच टू रिवर मैनेजमेंट। ओके। तो हमारी जो मास्टर प्लान या रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान है इसके 3 मकसद होते हैं। पहला मकसद है कि हम अपनी रिवर को अपने रिवर बेसिन को समझें जी। कि उस उसकी कैसी नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या स्पेशलिटीज़ हैं। सो क्या चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। So that is one part to understand the basin. The second important objective is कि उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं बेसिन में उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उनको उनके लिए सोल्यूशन प्रपोज करना। सो आप मैनेज नहीं कर सकते हो रिवर को बेसिन को जब तक उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करोगे। राइट।
तीसरा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमारा जो वाटर रिसोर्सेज हैं उस बेसिन के अंदर, उसका डेवलपमेंटल पोटेंशियल क्या है, उसको हम वहाँ के लोगों की डेवलपमेंट के लिए, उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। तो जैसे कि अ, क्या हम बिजली बना सकते हैं, जिसको हम हाइड्रो पावर कहते हैं? क्या से इरिगेशन कर सकते हैं, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं? क्या हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं ताकि लीन सीजन में पानी की कोई कमी ना हो? क्या हम नेविगेशन की फिजिबिलिटी है वहाँ पे नेविगेशन क्रिएट कर सकते हैं ताकि पैसेंजर्स और कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन हो? क्या टूरिज़्म डेवलप किया जा सकता है? वगैरह वगैरह। सो जी। बहुत सारे इकोनॉमिक पोटेंशियल हो सकते हैं। और जो मास्टर प्लान 52 बन चुकी हैं उनको हम फेज्ड मैनर में अपडेट करेंगे। जी। और ये भी हमने एक इन प्रिंसिपल डिसीजन लिया है कि हम हर 10 साल के अंदर मास्टर प्लान को अपडेट किया करेंगे। और ये भी डिसीजन है कि सब मास्टर प्लान्स हमारी फ्यूचर में जीआईएस पोर्टल पे होंगी, जीआईएस बेस्ड हाई टेक मास्टर प्लान्स होंगी। और अ, हमारी ये भी अ, कोशिश है कि मास्टर प्लान की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको हम रेगुलरली उनकी इम्प्लीमेंटेशन को ट्रैक करें। तो उसके लिए हमारा पोर्टल जो है उस पे हम एक इम्प्लीमेंटेशन मॉड्यूल भी डेवलप कर रहे हैं ताकि क्योंकि ये जो मास्टर प्लान होती हैं ये हम बना के मिनिस्ट्री को सबमिट करते हैं। मिनिस्ट्री जब उनको अप्रूव करती है तो उसके बाद हम वो स्टेट को देते हैं। जिस जिस स्टेट में से वो नदी गुजर रही है, जिस जिस स्टेट का पानी उस नदी में आ रहा है, जो बेसिन स्टेट्स हैं, उनको हम वो मास्टर प्लान दे देते हैं। और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बाद कि उस मास्टर प्लान के मुताबिक वो अपने स्टेट में कार्रवाई करें। थैंक यू सर। सर मैं अपना अगला क्वेश्चन एक बहुत बेसिक सा चीज़ आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ये हमारे टेक्निकल टीम को पता कैसे चलता है कि यहाँ फ्लड आने वाला है या यहाँ बैंक इरोजन ज़्यादा हो रहा है? सो व्हाट इज़ द स्कीमा बिहाइंड दैट, द टेक्नोलॉजी बिहाइंड दैट? जी, तो ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं जो हमारा ओरिजिनल सवाल था कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड करता क्या हाँ, है ना? जी। तो उसमें पहली बात तो मैंने ये बताई थी कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड नॉर्थ ईस्ट की नदियों के प्रबंधन के लिए मास्टर प्लान तैयार करता है। दूसरा जो हमारा मैंडेट ब्रह्मपुत्र बोर्ड एक्ट के मुताबिक मिला था, वो था कि नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि बहुत हाइड्रो पावर पोटेंशियल है और तकरीबन 60,000 मेगावाट का पोटेंशियल है नॉर्थ ईस्ट में। तो हमको ये मैंडेट है हमारे कानून के अंतर्गत कि हम बड़े प्रोजेक्ट्स की, जिसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, उनकी डीपीआर बनाएं। और ये भी हमारे मैंडेट में है कि वो डीपीआर बनाने के बाद हम ये तय करें, ये प्रोग्राम बनाएं कि उन प्रोजेक्ट्स को कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स को ब्रह्मपुत्र बोर्ड खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, कौन से प्रोजेक्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए देगा और उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। और जब बन के तैयार हो जाएगा तो उसको ऑपरेट करना, मेंटेन करना, ये भी हमारे मैंडेट में था। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो है वो हमारा सेकंड बड़ा मैंडेट। और उसके अलावा अ, जो प्रॉब्लम ऑफ फ्लड, इरोजन, कंजेशन इन द नॉर्थ ईस्ट, उसको सॉल्व करने के लिए अगर कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स दूसरे प्रोजेक्ट्स लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे जिनको हम ड्रेनेज डेवलपमेंट स्कीम्स कहते हैं या एंटी इरोजन वर्क्स कहते हैं या फ्लड कंट्रोल वर्क्स कहते हैं, तो वो भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ब्रॉडली ये हमारा मैंडेट है। जो
जो सेंट्रल मैंडेट है हमारा, वो तो है टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड, इरोजन एंड कंजेशन इन ब्रह्मपुत्रा वैली। और ब्रह्मपुत्रा वैली से हमारा मतलब है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। लेकिन जब हम इसको करें इन ए वेरी साइंटिफिक मैनर, राइट। तो इसी मैंडेट को पूरा करने के लिए हमको मास्टर प्लान बनाने की ज़रूरत होती है, हमको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाने की ज़रूरत होती है, और हमको ड्रेनेज डेवलपमेंट स्कीम्स वगैरह वो सब करने की ज़रूरत होती है, ओके। एंटी इरोजन वर्क्स करने की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा ब्रॉडली मैंडेट है। हम क्योंकि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है और बेसिन स्टेट्स जो हैं वो वाटर उनका सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वाटर का सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में है। तो वो उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी है। लेकिन क्योंकि ये जो रिवर्स हैं ये ट्रांस बाउंड्री इंटरस्टेट रिवर्स हैं, और इंटरस्टेट रिवर्स में किसी एक स्टेट से बात नहीं बनती, स्टेट्स को मिलजुल के काम करना पड़ता है जी। इसलिए एक सेंट्रल एजेंसी का होना एक तरीके से ज़रूरी भी होता है, ताकि हम कोऑर्डिनेट कर सकें। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो किसी न किसी स्टेट में होगा। हाँ, बिल्कुल। तो हम उन स्टेट्स के साथ मिल के काम करते हैं, उनसे पूछ के काम करते हैं, उनको बता के काम करते हैं, उनकी एनओसी लेके काम करते हैं। हाँ। तो और जो स्टेट्स की प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स वही हमारी प्रायोरिटी। राइट। हमारा जो बोर्ड है उसकी जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, उसमें दो इंस्टीट्यूशंस हैं। एक तो जिसको हम ब्रह्मपुत्रा बोर्ड बोलते हैं, जिसका मैं चेयरमैन जी। हूँ। उस बोर्ड में सारे स्टेट्स के मेंबर्स होते हैं। तो हम साल में 3 बार बोर्ड की मीटिंग करते हैं। ओके। उसमें सारे स्टेट्स के मेंबर्स होते हैं, कुछ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के भी मेंबर होते हैं, और हम उसमें अपने मैंडेट के मुताबिक और स्टेट गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नए नए प्रपोजल्स कंसीडर करते हैं, ओके। और उनको पास करते हैं। उसके बाद उनके ऊपर काम करते हैं। राइट, राइट। और एक और है जिसको हम हाई पावर रिव्यू बोर्ड बोलते हैं। ओके। ये हाई पावर रिव्यू बोर्ड जो है, इसके चेयरमैन हैं जल शक्ति मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, CR पाटिल साहब अभी मिनिस्टर हैं, तो ही इज़ द चेयरमैन। और उसमें जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, हमारे 9 स्टेट्स, उनके चीफ मिनिस्टर्स उसके मेंबर। ऑल राइट, ओके। और कुछ सेंट्रल मिनिस्टर्स भी, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर और शिपिंग मिनिस्टर, है ना, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर, डोनर मिनिस्टर, ये भी उसके मेंबर्स हैं। ओके, ओके। सो उसका काम है, इस बोर्ड का काम है कि पॉलिसी गाइडेंस देना ब्रह्मपुत्रा बोर्ड को, और ब्रह्मपुत्रा बोर्ड कैसा काम कर रहा है उसकी समीक्षा करें। राइट, राइट, यस, ये उसका काम होता है जी। तो आपका सवाल ये था कि हमको कैसे पता चलता है कि कहाँ फ्लड आने वाला है, जी, है ना? या तो इसमें बेसिकली बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच हम लोग फॉलो करते हैं। ओके। डेटा बेस्ड अप्रोच होती है। तो ऑब्जर्वेशन करी जाती है, जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन वाटर के लेवल को ऑब्जर्व करते हैं, जगह जगह पर उनके स्टेशंस होते हैं जहाँ पे वो ऑब्जर्व करते हैं, वो डेटा शेयर किया जाता है। उसके अलावा जब फ्लड आती है तो क्योंकि हमारे सैटेलाइट ऊपर घूम रहे हैं, वो तस्वीरें लेते हैं, तो वो सैटेलाइट डेटा भी लगातार कलेक्ट होता है। उसके बाद हम सर्वे करते हैं, तो उससे भी हमको डेटा मिलता है। हम मॉडलिंग करते हैं, तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर फ्लडिंग होने का ज़्यादा चांस है। राइट। तो इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे
इनंडेशन मैप्स बनाए जाते हैं। ओके। वो मैप से 3 डायमेंशनल ये पता चल सकता है कि कहाँ-कहाँ पानी अगर कि इस लेवल तक नदी का जो लेवल है यहाँ तक जाएगा, तो कौन-कौन सा एरिया में फ्लडिंग हो जाएगी। राइट। और उससे ऊपर जाएगा तो और कितने एरिया में फ्लडिंग हो जाएगी। Right. तो इस तरह के मैप बनाए जाते हैं। और जहाँ तक इरोजन की बात है, हाँ। तो इरोजन को भी हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। जैसे हमने बराक रिवर के ऊपर कहाँ-कहाँ इरोजन प्रोन एरियाज हैं, विच आर द एरियाज विच आर वल्नरेबल फॉर इरोजन, Erosion. वो हमने आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्टडी करी। एनआईटी सिलचर से Okay. स्टडी करवाई हमने। तो उन्होंने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पे, क्योंकि उसमें जो बैंक लाइन है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, बैंक उसकी कंडीशन देखी जाती है। सैटेलाइट इमेजरी जो है उसको एनालाइज किया जाता है कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में जो रिवर का बैंक है वो चेंज हो रहा है, Right. उसकी अलाइनमेंट चेंज हो रही है। और उसके अलावा जहाँ भी अलग अलग पॉइंट के ऊपर, रेगुलर पॉइंट्स के ऊपर जहाँ हमको लगता है कि यहाँ पे इशू है, तो उसमें सॉइल की टेस्टिंग की जाती है, बोर करके डिफरेंट लेवल्स पे, कि वो सॉइल कैसी है, कि वो पानी का कितना फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। ओके। ठीक है। तो इन सब तरीकों से, साइंटिफिक तरीकों से हम ये पता लगाते हैं कि कहाँ इरोजन प्रोन, कौन कौन सा एरिया रिवर बैंक का इरोजन के लिए ज़्यादा वल्नरेबल है। राइट। अभी हमने आईआईटी गुवाहाटी को एक स्टडी दी है कि ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर, ब्रह्मपुत्रा मेन स्टेम जो है, जो कि सदिया से शुरू होता है जी। और धुबरी तक हम्म। कि इस पूरे स्ट्रेच में आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस करके ये पता लगाइए कि कहाँ कहाँ इरोजन होने का ज़्यादा चांस है, ज़्यादा मैसिव इरोजन होने का चांस है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है इरोजन का, उन साइट्स को आइडेंटिफाई करके हमको बताइए, ताकि जी। हम उसके ऊपर फिर आगे प्लानिंग कर सकें। राइट, राइट, राइट। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं। तो सर, मेरा अगला सवाल इसी प्लानिंग के ऊपर था कि जैसे आपको पता चल गया कि इस जगह पे फ्लड आने वाला है या यहाँ पे सॉइल इरोजन, बैंक इरोजन हो रहा है, सो व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज दैट द बोर्ड डज? देखिए, फ्लडिंग की जहाँ तक बात है, तो फ्लड इज़ ए रेगुलर फीचर ऑफ द रिवर। बारिश का पानी जब ज़्यादा आता है किसी भी वजह से, जैसे बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, जी। तो जनरली आपने देखा होगा कि मॉनसून में फ्लडिंग होती है, Yes. क्योंकि बारिश का पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। ऐसे ही कई बार आपने सुना होगा कि जहाँ डैम है, डैम से पानी ज़्यादा छोड़ना पड़ा राइट। किसी वजह से, क्योंकि डैम को सेव करना भी बहुत ज़रूरी होता बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? तो डैम से अगर ज़्यादा पानी छोड़ा तो उससे भी नीचे फ्लडिंग हो जाती है। राइट। ठीक है? तो अलग-अलग कारण इस तरीके से फ्लडिंग के हो सकते हैं। फ्लडिंग का ये होता है कि ये एक नेचर का मैकेनिज़्म है, पानी को मैनेज करने का। और वो नदी के तट से क्रॉस करके पानी ऊपर जाके और आसपास के इलाकों में फैल जाता है। तो आपने ये भी देखा होगा कि हमारे ये एरियाज़ में कुछ वाटर बॉडीज़ होती हैं, हाँ। तालाब, जी। पॉन्ड्स, है ना? हम्म। वाटर बॉडीज़ होती हैं। तो उन वाटर बॉडीज़ को पानी कैसे मिलता है? वो ऐसे ही फ्लड्स के माध्यम से मिलता है। जब Okay. नदी वहाँ पानी ओके। भेजती है। जी। जब नदी के पास ज़्यादा पानी होता है तो वो कुछ पानी वहाँ जमा करती है। राइट, राइट। ठीक है? तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, राइट। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इकोलॉजी। और दूसरी बात ये है कि जब नदी में पानी का लेवल बहुत बढ़ा तो पानी इस तरीके से टॉपल होके फ्लडिंग करता है, और फिर जब नदी का पानी जब नीचे जाता है तो वो वापस आ जाता है पानी नदी में। उन वो स्मॉल वाटर हाँ, बॉडीज से। तो पानी ओके। वापस नदी में आ जाता है। राइट। तो ये मतलब एक टेम्परेरी फिनोमिनन होता राइट। है। ओके। लेकिन जो लोग उस दायरे में आते हैं जहाँ के पानी भर रहा है फ्लडिंग की वजह से,
उनको परेशानी होती बिल्कुल। है ना? हम्म, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उनका डिजास्टर रिलीफ का अपना सिस्टम है। ओके। तो जैसे एनडीआरएफ है, हम्म, एसडीआरएफ है जी। और डिजास्टर रिलीफ प्लान्स बनाई जाती हैं। तो उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो भारत सरकार ने इसके लिए क्या किया हुआ है कि हमारी एक संस्था है जिसको सेंट्रल वाटर कमीशन बोलते जी। हैं। वो पूरे देश के अंदर बड़ी बड़ी नदियों के अंदर फ्लड फोरकास्टिंग करते हैं। ओके। उनका एक मोबाइल ऐप भी है जिसको फ्लड वॉच बोलते हैं। हम्म, तो उसमें कोई भी सिटीजन अपने आसपास की नदी में क्या लेवल पानी का चल रहा है और खतरे के निशान से ऊपर है कि नीचे है, वार्निंग से ऊपर है कि नीचे है, क्या एग्जैक्टली लेवल है और ट्रेंड क्या है, वेदर इट इज़ राइजिंग ट्रेंड और वेदर इट इज़ डिक्लाइनिंग ओके। ट्रेंड, ये सब वो बताते हैं ओके। ताकि लोगों को पता चले कि भाई अभी नदी की क्या स्थिति है। स्थिति है। ओके। ठीक है। और लोगों को अलर्ट किया जाता है। तो हम्म, एक चीज़ होती है इसको बोलते हैं अर्ली वार्निंग वार्निंग सिस्टम। सिस्टम, यस। ठीक है। यस। तो वो अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाती है। आजकल क्योंकि कम्युनिकेशन के माध्यम बहुत हो गए हैं, राइट। तो जैसे मोबाइल पे मैसेज, व्हाट्सएप, लोगों के बहुत व्हाट्सएप भी होते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी, ऑफ कोर्स वेबसाइट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और रेडियो के माध्यम जी। वगैरह वगैरह। जी। सो देर आर मैनी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो लोगों को और फिर टाइम से लोग भी समझ जाते हैं, तो लोग भी अपने उस क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को उसी तरीके से रेगुलेट करते हैं जी। और जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है टाइम से उनको रेस्क्यू किया जाता है। और जगह जगह हमने जहाँ पे ज़्यादा फ्लड का चांस होता है तो हम शेल्टर्स बनाते हैं, वेरी नाइस। रेज्ड प्लेटफॉर्म्स भी बोलते हैं उनको। तो जो फ्लड जिस लेवल तक आती है उससे ऊंचा उसका लेवल होता है। तो हम लोगों को जो डिजास्टर रिलीफ टीम्स हैं वो उनको वहाँ ले जाके ओके। उनके लिए वहाँ खाने पीने का अरेंजमेंट करते हैं। सो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और फिर जब पानी वापस चला जाता है तो फिर लोग वापस अपने घरों में आ जाते आ हैं। जाते हैं। सो ये फ्लड मैनेजमेंट का सिस्टम होता है। लेकिन लोगों को जब नदी का लेवल ऊपर जाता है तो उनके घरों में पानी ना घुसे, हम्म, उनको परेशानी ना हो, वहाँ पे रिलीफ, रेस्क्यू एंड रिलीफ के अलावा उनको उनकी प्रोटेक्शन के लिए एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते ओके। हैं ना। एम्बैंकमेंट से मतलब ये है कि नदी की जो चैनल है उससे थोड़ा दूर एक ऊंचा एम्बैंकमेंट बनाया जाता है सब बांध ताकि, जिसको कहते हैं। हाँ, नहीं बांध नहीं, बांध एक अलग चीज़ है। ओके। इसको अ, ये किनारा कह लीजिए, है अच्छा। ना? ओके। दोनों साइड में जी। वो ऊंचा बनाते हैं मिट्टी से और फिर उसकी लाइनिंग वाइनिंग करते हैं। स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत भारी होता है। ओके। तो वो ज़्यादातर एरियाज़ में जहाँ नदियाँ हैं प्लेन्स में वहाँ ज़्यादा और फ्लडिंग का प्रॉब्लम होता है, वहाँ देश में ज़्यादातर एरियाज़ में एम्बैंकमेंट्स बनाए गए हैं। ओके। तो एम्बैंकमेंट की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है हम्म, ताकि एम्बैंकमेंट टूटेगा तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, राइट। राइट, है ना? बिल्कुल। तो उस एम्बैंकमेंट की मॉनिटरिंग भी करते हैं, उसकी रीइंफोर्समेंट भी करते हैं, कई बार उसको रेज़ भी करते हैं जहाँ हम्म, पे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम्म, उस तरह के काम भी किए जाते हैं लोगों की प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन। राइट। जी। तो सर इसमें कम्युनिटी क्या रोल निभाती है? आप कोई कम्युनिटी ट्रेनिंग या कुछ ऐसा भी करवाते हैं कि जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं वो भी हमारी प्रिपेयर्डनेस में मदद करते हैं? जी, बिल्कुल कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और कोई भी रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पब्लिक की पार्टिसिपेशन के बिना हो नहीं सकता। एट द सेम टाइम पब्लिक को में अवेयरनेस ये बहुत ज़रूरी है कि वो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन सी वेबसाइट उनको चेक करनी चाहिए, और जब अलर्ट आता है तो उसको उनको क्या करना चाहिए। तो ये आजकल अवेयरनेस हर जगह दी जाती जी। है
और लोगों के अपने ग्रुप्स होते हैं हर एरिया में, वो मिलजुल के काम करते हैं, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो उनको ट्रेनिंग देता है, उनके सेंसिटाइजेशन करता है, और जब भी ऐसी स्थिति आती है तो उनके साथ टाइम से कम्युनिकेट करके उनको मोबिलाइज करके उनको जो भी उनकी ज़रूरत होती है उनको पूरा करता है। और जहाँ तक इरोजन की बात है, कि हमने फ्लड की बात करी, ऐसे ही इरोजन क्या है कि नदी के बहाव की वजह से जो फोर्स होता है पानी का, उसकी वजह से वो टक्कर मारता है तट के ऊपर, टक्कर मारता है, और तट को अगर तट कमज़ोर है तो उसको इरोड करता है, जी। उसकी मिट्टी को निकालता है। हम्म। तो ये जैसा मैंने बताया कि पहाड़ों से बहुत तेज़ी से पानी नीचे राइट। आता है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर जब प्लेन में आता है तो धीरे-धीरे उसकी वेलोसिटी कम कम। होती है। बहुत सारा सेडिमेंट लेके आता है ऊपर से। फिर जब वेलोसिटी कम होती है तो वो सेडिमेंट को डिपॉज़िट करता है वो नीचे, और सेडिमेंट को डिपॉज़िट करना, और जब सेडिमेंट पानी में बहुत कम हो गया तो फिर वो सेडिमेंट उठाता भी है। राइट। तो ये मतलब सेडिमेंट कैसे उठाएगा, वो उसको काटेगा और उसकी मिट्टी को ले जाएगा अपने साथ। ओके। तो ये इरोजन का प्रोसेस चलता रहता है। हम्म। लेकिन जैसे फ्लड तो मैंने बताया टेम्परेरी, जी। लेकिन इरोजन से जो डैमेज होता है वो ज़्यादा ज़्यादा परमानेंट टाइप। राइट। और जिस किसी के खेत की लैंड अगर इरोजन में चली गई तो उसको बहुत भारी नुकसान होता है। राइट। किसी का घर चला गया, कई बार तो बहुत ज़्यादा जहाँ इरोजन होता है तो बहुत सारे घर इस तरीके से एक साथ चले चले जाते हैं। तो असम में ये इरोजन की वजह से बहुत सारी ओवर द ईयर्स बहुत सारी लैंड इस तरीके से लोगों की जा चुकी है। और इसलिए जैसा मैंने कहा, हमने ये सारे जो चीज़ें हम एम्बैंकमेंट वगैरह वो सब भी इसी लिए किए जाते हैं। बट इरोजन को रोकने के लिए, ताकि अब जहाँ हमें पता है ये इरोजन यहाँ पे होने वाला है, जैसे हमने ये भी बताया आपको कि हम ये स्टडी करते हैं कि कौन सा एरिया में इरोजन ज़्यादा आ सकता है। जी। तो फिर हम वहाँ पे एंटी इरोजन मेजर्स लेते हैं ताकि लोगों को इरोजन की वजह से नुकसान ना हो, उनको जान का माल का नुकसान ना हो। तो वो क्या होते हैं उसमें, एक तो होता है हम जिसको रिवेटमेंट बोलते हैं, कि हम रिवर बैंक जो है उसको ट्रीट करके और स्लोप बना के वहाँ पे या तो पत्थरों से, अगर वहाँ पे पत्थर अवेलेबल हैं तो पत्थरों से तार बांध के और वो उसको लाइनिंग कर देते हैं ताकि वो जो मिट्टी है वो डायरेक्ट पानी के साथ ना टच में आए और वो वहाँ पे प्रोटेक्शन हो जाए। या फिर हम जियो बैग्स लगा, ओके। बड़े बड़े बैग्स के अंदर मिट्टी भर के और ओके। वो जमा करते हैं। जी। जी। तो इस तरीके से हम इसको स्लोप बनाते हैं और बैंक को प्रोटेक्ट करते हैं। इसको हम रिवेटमेंट कह लीजिए या बैंक लाइनिंग कह लीजिए या बैंक प्रोटेक्शन कह लीजिए, इस तरह का काम होता है। इसके अलावा हम ऐसा भी करते हैं जिसको हम रिवर ट्रेनिंग वर्क्स बोलते हैं, कि हम ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे पानी उस स्ट्रक्चर से टकरा के डायरेक्शन चेंज करे, तो उस दिशा में ना जाए जहाँ पे वल्नरेबल है। राइट। 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 ठीक है, तो उससे मतलब एक तरीके से हम रिवर को ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। उधर मत जाइए, दूसरी तरफ जाइए। ओके। तो फिर हम पोर्क्यूपाइंस भी डालते हैं। पोर्क्यूपाइंस कंक्रीट के बने हुए बड़े बड़े ये एक पोर्क्यूपाइन में 6 कंक्रीट के हैवी बार्स होते हैं, तो उनको जोड़ के एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इसको हम फेंक देते हैं उसके ऊपर। तो एक लाइन में फेंकेंगे, फिर उसके ऊपर फेंकेंगे पानी के अंदर, फिर उसके ऊपर फेंकेंगे। तो क्या है कि पानी का जो बहाव है उसको वो स्लो कर देगा। ओके। ओके। तो पानी के बहाव को स्लो करने की वजह से पानी के अंदर जो सेडिमेंट है, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ना, वो
सेडिमेंट को छोड़ देता है, सेडिमेंट वहाँ जमा होता है। राइट। तो जब सेडिमेंट जमा होता जाएगा तो फिर पानी उस सेडिमेंट की वजह से पानी अपनी डायरेक्शन चेंज कर, है ना, क्योंकि वो ऊंचा हो गया तो पानी नीचे की तरफ जाएगा। राइट 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 तो वो भी एक ट्रेनिंग, रिवर ट्रेनिंग का राइट। काम है। और हम कई बार बेड बार्स बनाते हैं, जो कि जहाँ नदी के बेड में हम कुछ ऑब्स्ट्रक्शन लगाते हैं ताकि पानी टकरा के स्लो भी हो, डायरेक्शन भी चेंज करे। तो इस तरह की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हमें आते हैं। राइट। इससे लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है। करेक्ट जी। सर, एक बचपन से हम चीज़ सुनते आ रहे हैं, मतलब मैंने भी स्कूल में पढ़ाई किया था कि पेड़ जहाँ होते हैं, पेड़ लगाने से सॉइल इरोजन बचता है। सो ये नॉर्थ ईस्ट एरिया का कैसा है कि मतलब वहाँ पे जंगल कैसे हैं और उससे फ्लड्स और सॉइल इरोजन पे क्या इम्पैक्ट है? जी, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया है, और आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनका बहुत ही क्रूशियल रोल होता है रिवर मैनेजमेंट में, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में, क्लाइमेट मैनेजमेंट में इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सो जब डिफॉरेस्टेशन किसी भी वजह से, डिफॉरेस्टेशन या लैंड यूज चेंज, यूज का पैटर्न जी। चेंज होता है, तो उसकी वजह से बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे कि जो, क्योंकि पेड़ जो है, और जब हम जंगल की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पेड़ है, राइट। उनकी वो ज़मीन में उनकी जड़ें हैं, और उसकी वजह से वो जो सरफेस है, जो लैंड है, वो स्टेबल रहती है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन जब हो जाता है तो वो पानी, नॉर्मली जो पानी आएगा वो बिकॉज ऑफ द ट्रीज, द फॉरेस्ट, वो पानी धीरे धीरे करके नदी की तरफ जाएगा, जाएगा। धीरे धीरे करके अपना एक फ्लो से, जी। क्योंकि वो जो पेड़ हैं वो भी उसके फ्लो को कम करते हैं, उसकी करेक्ट। स्पीड को कम करते जी हैं। जी जी। वहाँ पे और दूसरी वेजिटेशन है वो भी इसको कम करती है। राइट। तो और क्योंकि वो स्लो जा रहा है तो वो पानी ज़मीन के अंदर जाने का उसको टाइम है ना, बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा है तो वो अंदर परकोलेट होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और अंदर परकोलेट होता है तो फिर सॉइल मॉइस्चर इम्प्रूव होती है। लीन सीजन के लिए भी पानी होता है, जो हमारे स्प्रिंग्स हैं वो रिचार्ज हो जाते हैं, झरने जिनको बोलते हैं, जी। वो पहाड़ों में तो झरना ही मेन सोर्स होता है पानी का, राइट। है ना, यस। तो वो रिचार्ज होते हैं। तो ये पूरा नेचर का साइकिल चलता है। लेकिन अगर इसमें से फिर हम जंगल को निकाल लें तो फिर क्या होता है कि वो पानी स्पीड से जाता है, हाँ, उसको रुकावट कम होती नहीं है, मिलेगा। बिल्कुल। और जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो जो ज़मीन है, सॉइल, वो एक्सपोज हो जाती है। तो जब पानी जाता है स्पीड से जाता है, उसको ले जाता है अपने जी साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लेके जाएगा तो उसको भारी हो जाएगा पानी, फिर भारी हो जाएगा तो उसका और ज़्यादा मोमेंटम हो जाएगा, और हाँ, ज़्यादा फोर्स होगा, बिल्कुल। और ज़्यादा लेके जाएगा। तो एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है, और जितना ज़्यादा सेडिमेंट नदी में जाएगा तो वो फिर आगे जाके प्रॉब्लम करेगा, इरोजन की प्रॉब्लम। बिल्कुल। है ना? तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जंगलों को बचाएं। राइट। नॉर्थ ईस्ट में आपने सुना होगा कि एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जिसको हम झूम कल्टीवेशन हाँ, कहते हैं, जी, है ना, जी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं यस। उसको। तो वो उस प्रैक्टिस में क्या होता है कि जंगल को काटा जाता है और वहाँ पे खेती की जाती है, और फिर जब, क्योंकि जंगल को काट के जब खेती करते हैं तो उसमें फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, बिल्कुल। फिर जब उसकी फर्टिलिटी लेवल कम हो जाता है तो फिर दूसरे एरिया में जाके जहाँ पे वहाँ पे सेम साइकिल रिपीट होता है। तो लॉट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स आर नाउ taking they have prepared plans for discouraging this kind of a practice, प्रैक्टिस। और लोगों को इंसेंटिवाइज करना कि वो जंगलों को प्रोटेक्ट करें। राइट राइट राइट। थैंक यू सर। सर, अब क्योंकि हमने इतनी सारी जैसे दिक्कतों की बात, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, व्हाट इज योर मैसेज
to the people कि ऐसे क्या practical steps हैं, and it's not only for the northeast people, it's for all those people who live in such areas which are flood prone areas, bank erosion areas. What are your quick tips for them कि वो ऐसे में क्या करें? ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को रिवर के साथ रिवर के साथ जीने की और नेचर के साथ जीने की शैली अपनानी चाहिए। ये Okay. बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा जो लाइफस्टाइल है या हमारी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं या हमारी जो अभिलाषाएं एम्बिशन हैं वो रिवर की नेचर के अगेंस्ट है, ओके, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। जी। आप नेचर के साथ लड़ नहीं सकते, हाँ, 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 बिल्कुल। है ना। हाँ। तो इसमें एक अपार्ट फ्रॉम दिस के भी लोगों को जागरूक रहना चाहिए, लोगों को जानकारी हासिल करनी चाहिए टाइम से। अगर लेवल राइज होता है तो टाइम से अपना एक्टिविटीज़ को वाइंड अप करके और सेफ जगह पे जाना चाहिए। जी। तो ये सारी बातें तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, जैसे कि फ्लड फोरकास्टिंग के बारे में हाँ। मैंने बताया। तो ऐसे ही एक और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर होता है जिसको हम कहते हैं फ्लड प्लेन जोनिंग। ओके। तो फ्लड प्लेन जोनिंग का मतलब ये है कि हम इस तरीके से रिवर के आसपास के एरिया को रेगुलेट करें कि लोगों को फ्लड से दूर रखा जाए, ओके। है ना। हाँ। सो इसमें क्या किया जाता है कि पूरे नदी के दोनों तरफ किसी दूरी तक हम उसको फ्लड प्लेन बोलते हैं। जहाँ जहाँ तक फ्लड जाता है जी। नेचुरली, जब रिवर में फ्लड आता है तो जहाँ जहाँ तक फ्लड जाता है उसको हम फ्लड प्लेन बोलते हैं। ओके। तो जब ज़्यादा इंटेंसिटी का फ्लड होता है तो वो दूर तक जाता है, हाँ, जब कम इंटेंसिटी का होता है तो नज़दीक। नज़दीक। राइट। ठीक है। तो जो रिवर के बहुत नज़दीक वाले एरिया हैं वहाँ तो ज़्यादातर फ्लड हर साल ही आएगा और हो सकता है साल में कई बार आता है ना, जो नदी के बहुत नज़दीक। जी। जो थोड़ा दूर हैं वहाँ पे कम फ्रीक्वेंटली आएगा, लेकिन वहाँ भी आएगा। जी। जो थोड़ा और दूर हैं वहाँ कभी कभी आएगा। ठीक है। बिल्कुल। तो हमें जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटी जो है और डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो है और जो लैंड यूज़ है वो भी इसी के मुताबिक वहाँ पे अलाउ करना चाहिए। हाँ, तो उसकी बिल्कुल। जोनिंग करनी चाहिए बिल्कुल। कि इस जोन में ज़ीरो डेवलप कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है। राइट। जहाँ पे कि बार बार फ्लड आती है तो वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी एक्टिविटी वहाँ अगर होएगी तो उससे फ्लड की वजह से डिजास्टर हो सकता है। जी। है ना। जी। उससे जो दूर वाला जोन है उसमें कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड होनी चाहिए, जैसे कि पार्क वार्क हो गया, गार्डन हो गया, या कुछ ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि इन डैमेज की ज़्यादा होने का चांस नहीं है। उससे और दूर वाली जो हैं उसमें कुछ ऐसा हो सकता है जो कि कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा, यूटिलिटीज़ एंड दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स कैन बी देयर। और जो उससे भी बाहर का एरिया है वहाँ पे जैसे इंडस्ट्री और इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। और फिर जो लोगों के रहने का जो हैबिटेशन एरिया है, राइट। वो तो इस तरीके से हमको करना चाहिए। अब मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि ये जो फ्लड प्लेन जोनिंग है ये नॉर्थ ईस्ट में बाकी इलाकों से, बाकी जो हमारे प्रांत हैं उनसे कहीं ज़्यादा काम हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। एक्चुअली 1970s में Manipur was the first state in the country to have passed a floodplain zoning law. That was the first state. और वो तो नॉर्थ ईस्ट में ही है। जी। और अब
पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि अरुणाचल ने भी फ्लड प्लेन जोनिंग का लॉ पास किया और नागालैंड ने भी पास किया, ओके मेघालय ने भी पास किया है. So several states are now doing it in the northeast. So it's a very good trend. राइट बाकी स्टेट्स को भी और ख़ास तौर से जो जहाँ पे ज़्यादा फ्लड आती है वहाँ पे ये फ्लड प्लेन जोनिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए. ब्रह्मपुत्रा बोर्ड की ये कोशिश है, हम स्टेट्स को लिखते भी रहते हैं. हमने स्टेट्स को सेंसिटाइज करने के लिए और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए पिछले साल एक वर्कशॉप भी आयोजित की थी, ओके जिसमें सारे स्टेट्स के ऑफिसर्स को हमने बुलाया था और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में समझाया था. और हमने सब स्टेट्स को ये कहा है कि फ्लड प्लेन जोनिंग के लिए आपको जो भी मदद चाहिए, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड विल बी वेरी हैप्पी टू प्रोवाइड. राइट थैंक यू सो मच सर. सर यहाँ पे मैं अपने क्वेश्चंस को विराम देती हूँ. काफ़ी हमारे पास क्वेश्चंस यूट्यूब पे आ गए हैं, सो मैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस को पिक करके आपसे पूछना शुरू Sure. करती हूँ सर. सर पहला क्वेश्चन ये सुनीता जी ने पूछा है, आर एरिया फेसेस इरोजन एवरी सिंगल ईयर, हाउ कैन वी रिक्वेस्ट द ब्रह्मपुत्रा बोर्ड टू बिल्ड अ फिजिकल एम्बैंकमेंट और बोल्डर वॉल नियर आवर विलेज? तो ये अगर ऐसा एरिया है जहाँ पे इरोजन हमेशा होता रहता है, तो स्टेट गवर्नमेंट कैन रिक्वेस्ट ब्रह्मपुत्रा बोर्ड टू टेक अप ए प्रोजेक्ट and definitely we will then take the proposal to the board, Okay. get it approved, and then whatever that process is, because कोई भी प्रोजेक्ट हम जब करते हैं तो पहले उसकी एक डीपीआर बनानी पड़ती है, तो डीपीआर को सेंट्रल वाटर कमीशन से अप्रूव करवाना पड़ता है और उसके बाद फिर उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है. सो हम जैसे मैंने बताया, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड ऐसे ही डायरेक्टली जाके कहीं भी कुछ काम शुरू नहीं करता है, हम स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे काम करते Okay, okay. Thank you, sir. Sir, the other question is from Smart City Cool. They're asking, how are self-help groups being trained to manage village disaster plans? हैं. जैसे मैंने कहा कि ब्रह्मपुत्रा बोर्ड डायरेक्टली डिजास्टर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये स्टेट सब्जेक्ट है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी. होती है, तो वो मोबिलाइज करते हैं और एसडीआरएफ की टीमें भी होती हैं, क्विक रिस्पॉन्स टीम्स भी होती हैं उनके पास, और उनके पास वॉलंटियर्स होते हैं. वो कम्युनिटी के साथ मिल के कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं Okay, और उनको मोबिलाइज करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं. okay. Another question is from Pradeep. How can sustainable infrastructure and technology-driven development reduce flood risks and improve citizen safety in the Brahmaputra Valley? देखिए, सस्टेनेबिलिटी इज़ द मेन थिंग. हमको जो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस इलाके में डेवलप हो रही है, तो उसमें क्या फ्लड रिस्क है, क्या इरोजन रिस्क है, क्या क्लाइमेट चेंज रिस्क है, क्या सीज़मिक रिस्क है, वगैरह वगैरह. तो इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना चाहिए और ये भी डिसीजन लेना चाहिए कि यहाँ पे ये अप्रोप्रिएट है भी कि नहीं. तो अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सस्टेनेबल होगी. Right. Thank you. Another question is from Digital Twin 12. What tracking tools does the ministry use to monitor weekly infrastructure progress? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस मीन्स ब्रह्मपुत्रा बोर्ड जो प्रोजेक्ट्स करता है उसकी मॉनिटरिंग हम करते जी. हैं. तो अगर हम कोई रिवर बैंक प्रोटेक्शन वर्क कर रहे हैं तो उसकी हम मॉनिटरिंग करते हैं, या कोई और प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, या हम मास्टर प्लान बना रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग होती है. इसमें हम लोग गोइंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू यूज़ दी most sophisticated project management software. जी. So we are taking steps to modernize our project monitoring
system. We have taken up the initiative to install and implement Primavera system. Okay. Okay. Uh, the next one is, so we'll take a couple of more questions. Sachin Bharadwaj, how can digital technologies such as AI, satellite monitoring, and real-time data analytics help improve flood forecasting and early warning systems in the Brahmaputra Valley? या सो ये जो डेटा है, चाहे वो सैटेलाइट से आता है, चाहे ऑब्जर्वेशन से आता है, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, मॉडलिंग है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी है, रिमोट सेंसिंग है, और जो हम मॉडलिंग टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे हमने IIT गुवाहाटी की मदद से अपना खुद का भी एक हाइड्रोलिक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जिसको हम ब्रह्मा मॉडल बोलते हैं। जी। तो ऐसे ही हैक के भी मॉडल्स हैं, दूसरे माइक के भी मॉडल्स हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज़ और डेटा यूज़ करके हम फ्लड फोरकास्टिंग को और ज़्यादा एक्यूरेट बना सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि सेंट्रल वाटर कमीशन डज द फ्लड फोरकास्टिंग फॉर द होल कंट्री, Right. and states are also doing now. They are, for example, there is an organization called FREMA Okay. in Assam. So they have set up a hydraulic hydraulic investigation unit, a hydraulic informatic unit, which is HIU, in the Water Resource Department Right. of Assam. So they are doing more sophisticated flood forecasting. They are Okay. developing those solutions. So by using new technologies and the data, we can have more accurate and more, advanced, more early forecasting, accurate forecasting. Accurate. Right. So right now what happens that the accuracy level is high when the time is short. Okay, so if we are giving a forecast for, let us say, 12 hours, it may be very accurate. Right. Okay? Ji. But if we are giving a forecast for, say, 1 week, then the accuracy level will not be that high. Okay. So as we use new technology and more data, then our accuracy level will keep on increasing. राइट, थैंक यू सर। सर, ये मैं आज का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। सूरज जी पूछते हैं, बाढ़ के कारण हमारी फसलें और पशुधन जब नष्ट हो जाते हैं, कैन यू सजेस्ट एनी फ्लड रेजिलिएंट फार्मिंग टेक्निक्स और फ्लोटिंग सी बेड्स? यस, जो भी इस फील्ड में जो इनोवेटिव टेक्निक्स आ रही हैं, जी। वो ट्राई करनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि ब्रह्मपुत्रा बोर्ड डायरेक्टली एग्रीकल्चरल और लाइव स्टॉक और अदर प्रैक्टिसेस हैंडल नहीं करता है, बट it is very, very important that we have greater adaptability of our current practices through innovation. Right, sir. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you for your insightful answers. And I thank our viewers जिन्होंने हमसे सवाल पूछे, और आपके सवालों से भी हमें काफ़ी कुछ सर से ब्रह्मपुत्रा बोर्ड के बारे में, फ्लड जोनिंग वगैरह की जैसी चीज़ों के बारे में जानने को मिला। सो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी आज की कॉन्वर्सेशन हेल्पफुल लगी, आपको लगता है इसमें से कोई ऐसी टिप्स हैं जो हमारे स्कूल के छात्रों को, कॉलेज के छात्रों को मदद करेगी, हमारे रिसर्चर्स को या उन लोगों को मदद करेगी जो फ्लड प्रोन एरियाज़ या बैंक इरोजन एरियाज़ के आसपास रहते हैं, तो कृपया ये प्रोग्राम का लिंक उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो उन तक भी इम्पॉर्टेंट मैसेजेस पहुंच पाएँ। और अगर आपने भी इसमें कोई
टिप्स ऐसी हैं जो अभी आप दोबारा सुनना चाहते हैं, तो ये वाला प्रोग्राम हमारा इसी लिंक पे रहेगा। आप कभी भी फ्यूचर में जाके इस प्रोग्राम को दोबारा देख सकते हैं। और अगर आपको डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के बारे में और जानना है, क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं उसके बारे में और जानना है, तो आप हमारी वेबसाइट्स digitalindia.gov.in या NEGD, दैट इज़ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न, जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करती है, या उनकी वेबसाइट negd.gov.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। मैं आपको हमारे डिजिटल इंडिया हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी बताना चाहूँगी। दैट नंबर इज़ 10505। ये नंबर आपकी मदद करेगा। अगर आपको डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव से रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे जो टीम है, वो आपकी ज़रूर मदद करेगी। आप ब्रह्मपुत्रा बोर्ड की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। ब्रह्मपुत्रा बोर्ड की वेबसाइट ब्रह्मपुत्रा board.gov.in पे जाकर आप ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, उनकी एक्टिविटीज़ और उसके ऊपर जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स या कुछ भी ट्रेनिंग वगैरह जो भी होती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे ज़रूर मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब वक्त है कि मैं अपने डिजिटल इंडिया क्वेश्चन निंजास के नाम अनाउंस करूंगी। तो हमारे आज के डिजिटल इंडिया क्वेश्चन निंजास हैं सचिन भारद्वाज, सुनीता एंड सूरज। I congratulate all three of you very much for winning this reward. I request you to kindly send me your details on our official email ID, which is askourexperts.negd@digitalindia.gov.in. आप हमें इस पे मेल करके आपने जो सवाल पूछा है वो, आपका एड्रेस जहाँ पे आप अपना रिवॉर्ड लेना चाहते हैं वो, आपका वो नाम जिस नाम से आपने ये हमारे YouTube लाइव चैट में क्वेश्चन भेजा था वो, तथा अपना फ़ोन नंबर ज़रूर डालिएगा, ताकि हमारा डिलीवरी पर्सन, हमारी टीम आपको कनेक्ट कर पाए आपके रिवॉर्ड भेजने तक। तो मैं आपको फिर तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में जुड़े और आपने सवाल पूछे। फिर मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले बारी फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। नमस्कार।